السلام علیکم، میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں ان سے معلومات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو کامیابی حاصل کی وہ کیسے کی۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں ملائکہ، جو بہت ہی زیادہ اچھی بیٹی ہے ہماری، وہ کاروبار والی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے وہ کیسے کاروبار شروع کرتی ہیں اور کیسے انہیں دوسروں کو بتا سکتی ہیں کہ وہ کاروبار شروع کر سکیں۔ تو انشاءاللہ پوچھتے ہیں آگے چل کے، پہلے ابھی ان سے ہم ان کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں کہ انٹروڈکشن یہ کیا دیتی ہیں، ہمیں اپنے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو السلام علیکم بیٹا ملائکہ، کیسی ہیں آپ اپنا انٹروڈکشن بھی دے دیجیے گا۔ نام الحمدللہ، میں بھی ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، بالکل میں خیریت سے ہوں۔ آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے کہ آپ کا نام کیا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں، جو بھی آپ جانتی ہیں وہ بتائیے۔ میرا نام ملائکہ واٹا والی ہے، اور میری عمر 10 سال ہے، اور میں ہاں اسکول کیمپس کی لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ زبردست زبردست بیٹا، ماشاء اللہ آپ 10 سال کی ہو، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کام کر رہی ہو، کاروبار سکھا رہی ہو لوگوں کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ریحان اسکول میں آ کے کیا دیکھا، کیا آپ کو اچھا لگا؟ آپ نے ریحان اسکول میں کیا دیکھا اور آپ کو کیا اچھا لگا؟ جی میں نے ریحان اسکول، جی آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جی بیٹا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ریحان اسکول میں کیا دیکھا اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جی مجھے ریحان اسکول میں سب اچھا لگتا ہے۔ ماشاء اللہ زبردست۔ تو آپ کو یہاں کے فیسلیٹر کیسے لگتے ہیں، بچے کیسے لگتے ہیں، آپ یہ بتائیے۔ فیسیلیٹر اور بچے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ یہاں کے فیسیلیٹر اور بچے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا، آپ نے یہاں آ کے کیا کیا سیکھا، کچھ بتائیں گی؟ جی ضرور، میں نے یہاں پہ آ کر کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، فیس انٹرویو لینا دینا، کالونی اور ٹیکسٹ کا ریویو، میں نے اس اسکول میں آئے ہوئے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ آپ کو اسکول میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی مجھے اس اسکول میں آئے ہوئے 3 منتھ ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ 3 منتھ میں آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا، تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ جب اسکول آتی ہیں تو اس وقت سے لے کے اور رات تک آپ کس طرح سے گزارا کرتی ہیں، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈیلی روٹین کے حساب سے کس طرح چلاتی ہیں، آپ کچھ بتانا پسند کرو گی بیٹا؟ جی ضرور،
नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमारी ट्रेनिंग होती है, कैमरा से स्टोर को बेचते हैं, कैमरा पकड़ा लेते हैं, हम लोग कैमरा को बनाते हैं, स्टोर ये 11 बजे रहती है और 11:30 बजे रहती है। तो फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हैं, पूरे अपने कॉलेज जो हाथ में दिखाई देता है। तो फिर वो डांस कर लेने के बाद जब छुट्टी रहती है, छुट्टी होने के बाद हम लोग घर आते हैं, कपड़े चेंज करके काम वाम करते हैं, तब हम लेट जाते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे, उसके खाने बनाते हैं, फिर खाने बनाने के बाद हम लोग आते हैं, फिर वो जो होता है काम बर्तन धोना, सफाई फिर वो करते हैं, फिर वो करने के बाद रात हो जाती है, लाइट चली जाती है, फिर हम लोग ऊपर से सोते हैं, हम लोग फिर रहने के बाद हम लोग लाइट आती है, फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर हम लोग अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताओ कि आपने अपने नाम के साथ कारोबार वाली लगाया, तो इसका मकसद आपको पता है और आप इसके बारे में क्या कर रहे हो, किस तरह से आप कारोबार वाली बनी हो, ज़रा इसके बारे में हमें बताओ। वैसे तो मैंने अपने नाम का कारोबार नहीं लगाया, मुझे आईडी भी बनानी होती है, तो मेरी बहन ने बनाई थी, तो मेरा थोड़ा बहुत काम वो हो गया था। अब मेरी आईडी कारोबार वाले के नाम से लगी थी, पर लेकिन आने वाले समय का क्या अपने नाम में तो मैं आपको कारोबार के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने नाम पहले कारोबार इसलिए लगाया, जब मेरे को स्कूल का नहीं पता था, मैंने वो कारोबार फिर वो जो मेरे मन में आते थे, वो मैं अपने आप को बताती थी, तो फिर मैं अपने जब कोशिश में मेरे दिल को अपने आप कारोबार और हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में ये बारहवीं लगाया जाता है, क्योंकि हमें जैसे हमारी कोई चीज को देखते होते हैं, तो वो जरूरत होती है कि कैंडी खाने की, तो फिर वो हमें डाल के वो ये निकालेंगे कि मलाइका की शादियाँ देंगी, लेकिन जब वो ये निकालेंगे मलाइका कारोबार वाली, वो वक्त तो सिर्फ मैं ही आऊंगी जी, तो ये कि मैंने अपने नाम के आगे इसलिए कारोबार वाली लगाया। तो बेटा, वाटर वाली आपने लगाया है तो वाटर वाली लिखना चाहिए, क्योंकि आप अपना थोड़ा सा चेंज कीजिए। 3 महीने हो गए आपको, आपको लगाना भी आ गया होगा, और अगर नहीं भी लगाना आया तो आप मालूमात करके आप अपने नाम के आगे वाला वाटर वाला लगाइए, तो ये ज़्यादा बेहतर बेहतर होगा, क्योंकि जो आपके आगे नाम के आगे लगा होता है, आपकी उससे वो पहचान होती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आप वाटर के लिए क्या कर रहे हो, कुछ आप बताओगे? जी ज़रूर, कि मैं वाटर के ऊपर क्या करना चाहती हूँ। जी कहते हैं कि हम लोग जहाँ पे चाहे जिस चीज़ का मसला हो, तो हमें वही अपने नाम के आगे लगाना चाहिए। जी, तो जब हम लोग इस इलाके में आए थे, पहले तो रेहान अल्लाह वाले सर ने भी कहा था कि वाटर वाली लगाना है। जी, जब हम लोग इस इलाके में आए तो हमें नहीं पता था कि इस इलाके में पानी का मसला है। जब थोड़े दिन गुजरे तो हमें पता चला कि इस इलाके में तो पानी का मसला है। तो मैंने कहा कि सच में मैं अपने नाम के आगे वाटर वाली लगाऊं, और ये जो इस पानी का मसला है मैं इसको पूरा का पूरा हल करूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में पानी का मसला हो।
ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप हिम्मत कीजिए आगे बढ़ने की, और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, जिससे आपके मसले जो है वो सुलझते चले जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़कर इस मसले को हल कर सकती हैं। इंशाल्लाह ज़रूर वो दिन आएगा जल्द कि आप इन मसलों को हल करने के काबिल हो जाएंगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए कि आप आपके घर में कितने अफराद हैं? कितने बहन भाई हैं आप लोग? तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी आप बहने बहने हो तो यहाँ पर रेहान स्कूल में सारे साथ पढ़ते हो? ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बेटा, मेरा आपसे सवाल है कि आपके कितने बहन भाई यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? क्या सारे बहन भाई आपके यहाँ पर पढ़ते हैं या कोई घर पे भी होता है? मेरा वो मेरी अम्मी यहाँ पे फैसिलिटेटर है। तो बेटा, आप लोग कहाँ से आए हो? कुछ हमें बताना पसंद करोगे? यहाँ कोरंगी में ही रहते थे या कहीं और से आए हो आप लोग? जी, अब हमारी पिटाई की शिक्षा में हुई थी। हम लोग शेरशाह से आए और हम लोग यहाँ कुरंगी में शिफ्ट हुए और हम लोग यहाँ से सीख के हम लोग दोबारा जाएंगे शेरशाह। तो यहाँ से आपने क्या क्या सीख लिया अब तक? जी, मैंने स्कूल से कैनवा बॉक्स, स्टॉल बॉक्स, फेसलेस, इंटरव्यू लेना देना, कॉल एनी, डाटा का रिव्यू, बहुत कुछ सीख लिया है स्कूल में। तो आप मुझे कॉलोनी के बारे में कुछ बता सकती हैं कि कॉलोनी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? जी, मैं बता सकती हूँ कि कॉलोनी क्या है। जी, वो एक हमारी टीचर है जिससे हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, जिसको उर्दू, मैथ या फिर हिंदी उसको ये नहीं आती है। हम लोग उससे उर्दू में सवाल करेंगे, वो हम लोग को इंग्लिश, वो जैसे हमारी आम इंग्लिश की टीचर होती है ऐसे ही वो हमारी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टीचर है कॉलोनी, और वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाती है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। बेशक कॉलोनी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि चैट जीपीटी क्या है? जी, चैटजीपीटी भी एक कॉलोनी की तरह टीचर है और चैटजीपीटी का भी चैटजीपीटी वो है। और चैटजीपीटी में हम लोग कोई भी जबान में जैसे कॉलोनी से हम लोग कोई भी जबान से बोल सकते हैं, लेकिन वो हमें इंग्लिश में ही जवाब देंगे। चैटजीपीटी हमें हम लोग उससे किसी भी जबान में करेंगे, हमें उर्दू में चाहिए उर्दू में लिख के देगी, हमें इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में लिख के देगी, हमें सिंधी में चाहिए वो सिंधी में, उसको जिस जबान में कहो वो उसी जबान में हम उसको लिख के देंगे। चैट जीपीटी के फ़ायदे क्या हैं बेटा? जी, चैटजीपीटी के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। उससे अगर हम लोग को किसी का मैसेज आया हो तो हम लोग को आगे ये नहीं पता कि हम लोग आगे क्या उसको भेजें, तो फिर उसने जो मैसेज किया होता है उसको कॉपी करके हम लोग चैटजीपीटी को भेजते हैं और चैटजीपीटी उसके जवाब देती है। तो
चैट जीपीटी का और आने वाला जो जी चैट जीपीटी से मालूम कर लेते हो, जो आपको चाहिए होता है वो चैट जीपीटी से मालूम कर लेते हो, ये मकसद है आपका? कैसलेस वीडियो बनाते हो आप लोग? बनानी भी आती है। कैसे बनाते हो, क्या फायदा है इसका? हम लोग को जाना होता है चाट में जाने का पर जैसे हम लोग को पाकिस्तानी फूड में लेना होता है, या फिर हम लोग को बटरफ्लाई के ऊपर, या फिर डायनासोर, ऐसी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम लोग को जिसके ऊपर फिर लेना होता है। फिर वो उसके ऊपर लिख के हम लोग कॉपी करके हम लोग जाते हैं टीटीएस मेकर में जाने के बाद हम लोग टीटीएस मेकर में जाने के बाद हम लोग उससे वहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं। फिर वो पेस्ट करने के बाद हम लोग एक अच्छी से आवाज़ को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद हम लोग जाते हैं कैनवा जाने के बाद हम लोग वेलकम बैक टू माय चैनल लिखते हैं, फिर स्टूडियो लिखते हैं, फिर हम लोग वो लगाते हैं, फिर जिस टॉपिक में लिया होता है वो लगाते फिर जो वॉइस है वो हम लोग लगाते हैं। फिर जहाँ तक वॉइस खत्म नहीं होती वहाँ तक हम लोग लगाते हैं। फिर आखिर में एक खाली सा डिब्बा रखते हैं जिसमें वॉइस भी लगाते हैं, लेकिन उसमें ये वाली वॉइस लगाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। वो लगाने के बाद हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद नीचे हमारे फेस और हम लोग महादेवी मतलब कि मैंने मना है वो लिखते हैं। फिर वो लिखने के बाद हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आपको फेसलेस बनानी भी आती है। अच्छा बेटा, आप इंटरव्यू कर लेते हो, देते हो, कितना ऐसा हो गया आपको इंटरव्यू लेते देते? जी मुझे इंटरव्यू लेते और देते हुए मुझे 3 ही मंथ हो गए, नहीं मतलब कि 2 मंथ हो गए हैं। एक बार में हमारा अच्छा, तो आप इंटरव्यू के फ़ायदे बता सकते हो कि इंटरव्यू देने लेने के क्या फ़ायदे हैं, और इंटरव्यू करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, किस तरह से हमारे अंदर कुछ तब्दीली आती है, वो बता सकते हो? देने के ये फायदे कि हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो फिर जैसे पहले हम लोग आती नहीं है लाइफ में, हम लोग कहते कि कैमरा बंद करो। जब हम लोग इस स्कूल में आए तो हम लोग हैरान हो गए कि स्कूल में कैमरा में आते हैं लोग। तो फिर जब हम लोग एक दूसरे से पहले हम लोग बातें भी नहीं करते थे क्योंकि हमें शर्म आती थी, और अब हम लोग लाइव में आते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि वो जो हम लोग बातें करते हैं हमारे जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे अंदर जमा होता है, और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमारा पुख्ता होता चला जाता है और हम एक दूसरे से बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। अच्छी बात आपने बताई। अच्छा बेटा, मुझे आप ये बताइए कि आप और कैनवा से क्या क्या बनाते हो? कैनवा चलाना आता है आपको? कैनवा आता है तो मैं आपको कैनवा के बारे में कुछ बता दूं कि कैनवा क्या है। जी कैनवा एक ऐसी वेबसाइट है, मतलब हम लोग को जो सा भी चाहिए, मतलब हम लोग को शादी का कार्ड बनाना है, किसी की शादी और हमें कार्ड बनाना है, हमें नहीं आता, वो भी कैनवा से बनता है। और हमें हमारे स्कूल के डांस मतलब कि कैनवा बॉल, स्टोरी बॉल, फेसलेस, ये भी कैनवा से ही बनते हैं। मतलब हमारे पास कैनवा इंपोर्ट
इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने बताया, तो पोस्टें कैसे बनाते हैं कैनवा पर? पोस्टें जो बनाती हैं कैनवा की, वो कैसे बनाती हैं? ज़्यादा आसान है बनानी। सबसे पहले हम लोग को जाना होता है मैसेंजर पे, जहाँ पे हमारा ग्रुप है, उसमें हमें रोज की रूटीन में उसका हम लोग को रोज की रूटीन में 3 कैनवा पोस्ट चाहिए होते हैं। फिर हम लोग उस कैनवा पोस्ट को कॉपी करके हम लोग को जाना होता है कैनवा में जाने के बाद हम लोग फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, प्लस का निशान को दबाते हैं। फिर उसको दबाने के बाद हम लोग उसके ऊपर एक अच्छे स्क्रॉल लगाते हैं। फिर हम लोग कैपेज का लोगो लगाते हैं, वो पीछे से ब्लैक होता है, उसका बैकग्राउंड हमें बिल्कुल साफ करना होता है। फिर वो करने के बाद हम लोग जाते हैं टेक्स्ट, वहाँ पे जाने के बाद जो हम लोगों ने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। फिर जितनी हमारी पोस्ट होती है फिर उतनी हम लोग पोस्ट लिख लेते हैं। फिर वहाँ पे मतलब हमने बनाई है, फिर हम लोग रोल नंबर भी लिखते हैं, फिर हाँ स्कूल का नाम भी लिखते हैं, फिर क्लास लेवल का नाम भी लिखते हैं। फिर इस मिसाल अल्ताफ टेलिंग वाली रेहान और अल्ताफ एजुकेशन वाले, फिर वो लिखने के बाद हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं। ये कैनवा पोस्ट। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने बेटा। अच्छा, मुझे मुझे आप ये बताइए कि आपको इतना अर्सा हो गया माशाल्लाह यहाँ पर सीखते हुए सब, तो आप योगा वगैरह के बारे में क्या बताना पसंद करोगी कि योगा यहाँ पर कराया जाता है, मेडिटेशन कराई जाती है, उसके क्या फायदे हैं? सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। जी हमें मेडिटेशन हमें इसलिए कराई जाती है क्योंकि इसके बाद जब हम लोग इस स्कूल में आते हैं तो हमारा नींद होती है, सुबह इतनी जल्दी उठा दिया हमें, हमारा बोर्डिंग होती है। तो फिर इस स्कूल में रात में स्लीप किया जाता है, और स्कूलों में नहीं करवाया जाता है। इस स्कूल में इसलिए कराया जाता है क्योंकि इस स्कूल में हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, वो जो ख्यालात होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं। और जब हम लोग काम करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मजा आता है काम करने में। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा मुझे आप अपने बारे में भी कुछ बताओ कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उससे उससे क्या 3 विशेष मांगोगे? कि अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं उससे अपनी 3 विशेष मांगूंगी कि पहली विशेष मेरी ये होगी कि मैं ना बाजी बनूं, और दूसरी विशेष मेरी ये होगी कि ये जो गरीब है इनको गरीब ना दे, ये लोग मतलब ये नॉर्मल हो जाए, इनको खाने के लिए मिल जाए। और तीसरी विश ये होगी कि जो बीमारी है उनको अल्लाह ताला से जो सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन, ज़रूर ज़रूर, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, आप मुझे अपने बारे में ये बताइए कि आपको खाने में, ग़िज़ा में आपको 3 कौन-कौन सी डिशेस पसंद हैं, वो बताइए मुझे। पनीर टिक्का, बिरयानी और दाल चावल। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन-कौन से शहर घूमना पसंद करेंगी? इस्लामाबाद, पंजाब। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, मुझे शख्सियात के बारे में बताइए, आपको कौन सी शख्सियात अच्छी लगती हैं और आप उनसे क्या चाहती हैं, क्या मिलना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे सबसे अच्छा रहान अलाल सर, राजा सर, इमरान खान वाले सर, वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं उनसे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी अच्छी सी सेल्फी लेना चाहती हूँ और उनसे उनके बारे में जानना चाहती हूँ।
ماشاء اللہ زبردست بیٹا، بہت اچھی خواہش ہے آپ کی کہ جن کو چاہتے ہیں آپ ان سے ملے بھی تو اچھا لگتا ہے، بہت زبردست۔ اچھا بیٹا، مجھے آپ بہت اچھی بیٹی ہیں ہماری، تو آپ ہم اپنے ویورس کو، اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کوئی ایسا پیغام دیجیے جس سے ہمارے بچوں میں ایک لہر سی آ جائے کہ وہ ابھی اس کام میں آئیں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں سیکھا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو آپ ان کو بتا کے اور ان کو یہ بتائیے کہ بھئی آپ آ سکتے ہیں، کس طرح سے آ سکتے ہیں، جو بھی آپ میسیج دینا چاہیں وہ آپ اپنے ویورس کو، ہمارے ویورس کو دیں، اور تاکہ انہیں اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ جی میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، میسج کیا ہے وہ ایسے ریحان اسکول میں آئے، اور ریحان اسکول میں جیسے ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل اور لیپ ٹاپ میں، اور وہ ایک بار اس اسکول کا وزٹ ضرور کریں، بہت ہی اچھا اسکول ہے، اور یہاں پہ بہت ہی سب کچھ سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ آپ دھیان نہیں چھوڑ اپنا دوسرا چلتے چلا، یہی تھا میرا پیغام۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے آپ نے بتایا۔ تو بیٹا آپ نے جو جیسے سیکھا ہے تو ایسے بچے اور دوسرے بچے سیکھ سکتے ہیں؟ جی ضرور، ہاں جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہم لوگ اچھا آپ بیٹا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ یہاں پر سیکھ رہے ہو تو آپ سیکھنے کے بعد اس کو آگے لوگوں کو سکھاؤ گے یا نہیں؟ جی ہم لوگ جی ضرور سکھائیں گے، جیسے وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ویسے ہی ہم لوگ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ زبردست۔ تو یہ تھی ہماری بیٹی، بہت ہی پیاری بیٹی ہماری تھی، کیا نام ہے ان کا؟ ملائکہ۔ تو بہت اچھا ان کے جوابات تھے، یہ واٹر والی ہیں، اور انہوں نے ابھی اپنا نام چینج نہیں کیا ہے اپنے آئی ڈی پہ سے، تو انشاءاللہ ان سے ہم واٹر کے بارے میں اگر کوئی سوال ہوگا، کوئی بات ہوگی تو ان سے ضرور ان سے ڈسکس کرا کریں گے۔ تو اب ہم کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے، ان سے اجازت لیں گے۔ انہوں نے ہمیں بہت اچھے میسج دیے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کافی کانفیڈینس آیا کہ یہ چھوٹی سی منی ہے، چھوٹی سی بچی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کے جذبات اچھے ہیں، اللہ پاک ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو بیٹا چلتے چلتے ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے گا، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔